السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے لندن کے چھتم ہاؤس میں ایک بات چیت میں راشٹر سیوم سیوک سنگھ کو ایک بنیاد پرست اور فاشسٹ تنظیم قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ اس نے ہندوستان کے تقریباً تمام اداروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہندوستان میں جمہوری مقابلے کی نوعیت پوری طرح بدل چکی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ RSS نامی ایک تنظیم، ایک بنیاد پرست فاشسٹ تنظیم نے بنیادی طور پر ہندوستان کے تمام اداروں پر اپنا قبضہ کر لیا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ نے بھارت میں دلتوں اور اقلیتوں کی حالت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلتوں، قبائلیوں اور اقلیتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کانگریس یہ کہہ رہی ہے۔ غیر ملکی پریس میں بروقت ایسے مضامین آتے رہتے ہیں کہ ہندوستان جمہوریت کے ساتھ سنگین مسئلہ ہے۔ کانگریس لیڈر نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح ملک کے مختلف اداروں کو خطرہ ہے۔ کانگریس کے سابق رہنما اور معروف وکیل کپل سبل نے انصاف کا سپاہی کے نام سے ایک نیا پلیٹ فارم شروع کیا ہے۔ کپل سبل کی اس ویب سائٹ کے ذریعے مرکزی حکومت کے خلاف وسیع پیمانے پر حمایت کو متحرک کیا جائے گا۔ اس کے لیے کپل سبل نے غیر BJP وزرائے اعلیٰ اور لیڈروں سے تعاون مانگا ہے۔ کانگریس کے سابق لیڈر کپل سبل نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی سے ان کے نئے پلیٹ فارم میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ NDTV سے خصوصی بات چیت میں انہوں نے کہا کہ PM مودی بھی میرے انصاف کے اس پلیٹ فارم میں شامل ہوں۔ کپل سبل نے کہا کہ وہ انصاف کا سپاہی کے جواب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اپوزیشن کا پلیٹ فارم بننے کے لیے اس کی حمایت کریں گے۔ اتر پردیش کے علی گڑھ شہر کی ایک مسجد کو ہولی کے تہوار سے پہلے ڈھانپ دیا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس پر رنگ نہ لگے۔ ہولی کے موقع پر پولیس انتظامیہ کی ہدایت پر امن و امان برقرار رکھنے کے مقصد سے علی گڑھ کے حساس ترین چوراہے پر واقع عبدالکریم مسجد کو پیر کی دیر رات ترپال سے ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہولی کے دوران غنڈہ عناصر مسجد کو رنگ سے گندا نہ کریں اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ رہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ چند سالوں کی طرح ہولی کے موقع پر حساس علاقے کی مساجدوں کو بھی رات کے وقت ترپال سے ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہولی کی وجہ سے کوئی مسجد پر رنگ نہ ڈالے۔ ریاست مہاراشٹر کے برسر اقتدار شیو سینا رکن اسمبلی سنجے شرت نے مطالبہ کیا ہے کہ مغل شہنشاہ اورنگزیب کی قبر مہاراشٹر کے اورنگ آباد سے حیدرآباد منتقل کر دی جائے۔ اورنگ آباد کے رکن اسمبلی نے یہ مطالبہ مجلس کے غیر معینہ مدتی احتجاج کے جواب میں کیا۔ مجلس اورنگ آباد کا نام بدل کر چھترپتی سامبھاجی نگر کر دینے کے خلاف ہفتے سے ہڑتال کر رہی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ شہر کا سابقہ نام بحال کر دیا جائے۔ چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے کے گروپ کے رکن اسمبلی نے کہا کہ اگر مجلس والوں کو اورنگزیب سے اتنا زیادہ لگاؤ ہے تو اورنگزیب کی قبر حیدرآباد منتقل کر دیں۔ وہ یہاں یادگار بنا لے، جو چاہیں کرے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن یہ احتجاج رکنا چاہیے۔ مجلس کے مقامی صدر شارق نقشبندی نے شیو سینا قائد کا مطالبہ مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ صرف سیاست ہے اور اس کا مقصد اپنا موقف مضبوط کرنے، مختلف فرقوں میں کشیدگی پیدا کرنا ہے۔ شملہ کے رامپور میں ایک مسلم شادی کے لیے غیر معمولی مقام چنا گیا۔ وشوا ہندو پریشد کے زیر اہتمام چلائے جانے والے مندر میں RSS کا دفتر بھی ہے۔ قریب میں مسجد ہے، لیکن مسلم کنبے نے شادی کے لیے مندر کا انتخاب کیا۔ مولوی نے 2 وکلا اور 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھایا۔ مندر میں بارات کا استقبال ہندو طریقے سے کیا گیا۔ مندر ٹرسٹ کا کہنا ہے کہ ہندو تنظیموں نے سول انجینئر دلہا اور M.Tech دلہن کی شادی کی حمایت کی۔ دلہن کے باپ نے کہا کہ شادی میں سبھی مذاہب کے ماننے والوں نے شرکت کی، اسی لیے ہم نے نکاح مندر میں کیا۔ بین الاقوامی یوم خواتین یعنی 8 مارچ کے موقع پر کیرالہ کے ضلع کاسگوڑ میں ایک انوکھی شادی ہونے والی ہے۔ تقریباً 29 سال سے شادی کے بندھن میں بندھے میاں بیوی اپنی 3 بیٹیوں کے لیے پھر سے شادی کر رہے ہیں۔ سب رجسٹرار دفتر میں شادی کے موقع پر ماں باپ، تینوں بیٹیاں، دیگر ارکان خاندان اور دوست احباب موجود رہیں گے۔ کاسرگوڑ کے ممتاز وکیل C. شکور کی شادی اکتوبر 1984 میں ڈاکٹر شینا سے ہوئی تھی۔ ان کی شادی انڈین یونین مسلم لیگ کے سرکردہ رہنما پانکر سید حیدر علی شہاب ٹھنگل نے کرائی تھی۔ یہ شرعی شادی مسلم پرسنل لا کے تحت ہوئی تھی۔ یہ جوڑا اس لیے رجسٹرار میرج کرنا چاہتا ہے کہ باپ کی ساری جائیداد صرف بیٹیوں کو ملے۔ ڈاکٹر شینا مہاتما گاندھی یونیورسٹی کوئٹہ کی وائس چانسلر رہ چکی ہیں۔ CBI نے سابق چیف منسٹر بہار رابڑی دیوی سے ان کی پٹنہ قیامگاہ پر پوچھ تاچھ کی اور ان کے شوہر اور سابق وزیر ریلوے لالو پرساد یادو کو نوٹس جاری کی۔ اراضی کے بدلے ملازمت اسکیم کی تحقیقات کے سلسلے میں یہ کارروائی انجام دی گئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ رابڑی دیوی کے مکان پر کوئی دھاوا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ CBI نے رابڑی دیوی کو نوٹس جاری کی تھی، جس کے بعد انہوں نے اپنی
दस्तयाबी से मुतला किया और टीम ने पूछताछ के लिए इनकी क़यामगाह का दौरा किया। ऐसी ही नोटिस आरजेडी के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर बिहार लालू प्रसाद यादव को भी दी गई है। ओहदेदारों ने बताया कि लालू यादव से मंगल को इनकी दुख्तर मीसा भारती की दहली क़यामगाह पर पूछताछ की जाएगी। आरएसएस चीफ मोहन भगवत ने इल्जाम लगाया है कि अंग्रेज हुक्मरानों ने हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया और इनसे पहले मुल्क की 70% ख्वानदा थी। भगवत ने एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस मुल्क पर अंग्रेजों के गलबे से कबल हमारी आबादी का 70% हिस्सा ख्वानदा और तालीम याफ्ता था और तालीम की बुनियाद पर हर एक को गुजर बसर का जरिया मुहैया होता था और बेरोजगारी बिल्कुल मामूली थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आने वाले मौसम गर्मा की तैयारियों पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने आम शहरियों, मेडिकल प्रोफेशंस और डिजास्टर रिस्पांस टीमों के लिए बेदारी के मवाद की तैयारी पर जोर दिया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 माह के दौरान हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी और मामूल से ज़्यादा दर्जे हरारत का इम्कान है। इससे ज़रई पैदावार भी मुतासिर होने का अंदेशा है और खुर्दोनी अशिया की कीमतों पर कंट्रोल की कोशिशों को धक्का लग सकता है। वज़ीर-ए-आज़म को मानसून की पेशकयासी, रबी की फसलों पर असरात, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी और सानेहात से निमटने की तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान में ज़ायदस 1 सदी का गर्म तरीन मार्च देखा गया था। उमेश पाल कत्ल के मामले में एक तरफ रोज नए नए इंकशाफात हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पुलिस कार्रवाई भी जारी है। पुलिस ने आज फिर एक इनकाउंटर किया जिसमें एक मुलजिम हलाक कर दिया गया। पुलिस के जरिए उमेश कत्ल मामले में कलीदी मुलजिम बताए जा रहे अहमदाबाद जेल में बंद साबिक MP अतीक अहमद के कुंबे ने आज मीडिया से गुफ्तगू के लिए खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और रियासती वजीर नंद गोपाल नंदी, इनकी अहलिया मेयर अभिलाषा नंदी और 2 आला पुलिस अफसरान के खिलाफ कई सनसनीखेज इल्जामात लगाए। साथ ही अतीक की बहन ने पुलिस अफसरान के जरिए इनके दोनों भाइयों के इनकाउंटर की धमकी दिए जाने की भी बात कही और हुकूमत से मामले में बिला तफरीक ज़ात व मजहब कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अलाउद्दीन कुंबे ने अपनी परेशानी और इस्तराब व बेचैनी से वाकिफ कराते हुए मामले में इंसानी हमदर्दी के मुजाहरे की तौक़े और मुतालबा भी किया है। प्रयागराज वाक़े प्रेस क्लब में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी, भांजी अंजिला नूरी और बरेली की जेल में बंद मोहम्मद अशरफ की अहलिया ज़ैनब फातिमा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दुख और दर्द का इजहार किया। ज़ैनब फातिमा और आयशा नूरी ने कहा कि नंद गोपाल नंदी और इनकी बीवी मेयर अभिलाषा नंदी इस पूरी साजिश में किसी न किसी तरह शामिल है। इनका कहना है कि नंदी अतीक अहमद के 5 करोड़ के मखरूज हैं, मगर अब वो ना फ़ोन उठाते हैं ना ही मिलते हैं। दूसरी तरफ जब से भाभी शाइस्ता परवीन ने मेयर का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, नंदी परिवार परेशान है। इन दोनों ने आला पुलिस हुकाम के जरिए ज़हनी तौर पर इनका इस्तेसाल किए जाने का भी इल्जाम आयद किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस रविंदर भट्ट ने सोशल मीडिया में जाली खबरों और नफरत अंगेज तकारीर के फैलाव से निमटने के लिए कानून की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इस मसले को हल करने के लिए कानून साजी होनी चाहिए और इसकी अदम मौजूदगी में अदालती मुदाखलत होनी चाहिए। लाइवला के मुताबिक उन्होंने हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के जरिए मीडिया का तेज़ी से फैलाव एक 2 धारी तलवार है। जहां सोशल मीडिया ने मालूमात की तरसील में आसानी पैदा की, वहीं गलत मालूमात और जाली खबरों में इजाफा तकरीर और इजहार की आज़ादी के लिए बिलवास्ता चैलेंज है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में इंटरनेट के जरिए मीडिया के आसान और तेज़ रफ्तार फैलाव, रियासत की पसपाई और बड़े पैमाने पर निजीकारी की वजह से इजहार राय की आज़ादी को कहीं ज़्यादा संगीन और बिलवास्ता चैलेंजेस का सामना है। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने रमज़ान के दौरान कुरान पाक और 76 से ज़्यादा ज़बानों में मायनों के तर्जुमों पर मुश्तमिल 1 मिलियन नुस्खों को तकसीम करने की मंजूरी दी है। कुरान पाक और इसके मायनों के तर्जुमों पर मुश्तमिल नुस्खे मुख्तलिफ साइज़ के होंगे जो मदीना मुनव्वरा के किंग फहद कॉम्प्लेक्स ने तैयार किए हैं। सऊदी वज़ारत इस्लामी उमूर व दावत व रहनुमाई ने रमज़ान के दौरान 22 मुल्कों में इस्लामी मराकिज़ के तवस्सुत से नुस्खे तकसीम कराएगी। वज़ीर इस्लामी उमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने, जो किंग फहद कॉम्प्लेक्स बराए इशात कुरान के सरबराह आला भी हैं, बताया कि सऊदी अरब दुनिया भर में लाखों अफराद तक कुरान करीम और इसका पैगाम पहुंचाने के लिए कोशां है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ए रेवंत रेड्डी ने प्रगति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद कर देने की मजम्मत करते हुए चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि क्या प्रगति भवन पहुंचने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत है। हर हाल में 9 मार्च को करीमनगर में मशाल रैली और जलसा मुनक्किद करने का फैसला किया। पुलिस गोलियां चलाती है तो सबसे पहले अपना सीना पेश करने का ऐलान किया। जिला करीमनगर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान कॉर्नर मीटिंग से खिताब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में समाज का हर तबका BRS हुकूमत और चीफ मिनिस्टर KCR की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। इंतखाबात से कबल हर तबके को चीफ मिनिस्टर वादों के जरिए हथेली में जन्नत दिखाने में कामयाबी हासिल करने के बाद इन्हें फरामोश कर देते हैं।
तदनशीन तेलंगाना स्टेट अखिलती कमीशन तारिक अंसारी ने दफ्तर सियासत पहुंचकर न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान से खैर सगाली मुलाकात की। रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल, अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से इन्हें जो जिम्मेदारी दी गई इसको बखूबी निभाने का यकीन दिलाया। साथ ही रोजनामा सियासत की समाजी, मिली और सहाफ़ती खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि कौम और मिल्लत के मसाइल को हुकूमत और ऐवानों के अलावा मुख्तलिफ महकमाजात तक पहुँचाने में सियासत ने अहम रोल अदा किया है। तेलंगाना के महकमा तालीम ने 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात को गलतियों की गुंजाइश के बगैर सख्त निगरानी के दौरान मुनक्किद करने का फैसला किया है। इसके एक हिस्से के तौर पर तमाम इम्तिहानी मराकिज़ में ये इम्तिहानात CCTV कैमरों की निगरानी में होंगे। इस सिलसिले में ओहदेदारों को हर इम्तिहानी मरकज़ में CCTV कैमरे लगाने की हिदायत दी गई है। मोहरबंद पर्चे सवालात को खोलने और जवाबी पर्चों की दोबारा पैकिंग का सारा अमल CCTV कैमरों में रिकॉर्ड किया जाएगा। गुज़िश्ता साल आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के पर्चे लीक हुए थे। इसके पेश नज़र महकमा तालीम ने यह फैसला किया है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श तारक रामाराव ने अवाम से अपील की है कि वो मजहब के नाम पर सियासत करने वाले कायदीन को सबक सिखाएं। उन्होंने अपने असम्बली हल्के सरसला के सरसला मुस्तकिर में मुस्लिम शादी खाना और उर्दू घर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की नज़र में तमाम मज़ाहिब मुसावी हैं, जबकि बाज़ मफाद परस्त कायदीन अपनी सियासी बका के लिए मजहब की आड़ में माहौल को गंदा कर रहे हैं। ऐसे कायदीन से चौकस रहने और इन्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। उन्होंने अक़लियतों की पसमानदगी की अहम वजह तालीम से दूरी करार दिया और कहा कि केसीआर अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, जिन्होंने रियासत में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया है। हुकूमत तेलंगाना ने बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर 8 मार्च को इसकी तमाम खातून मुलाज़मीन के लिए खुसूसी रुख़सत इत्तेफ़ाक़ी का ऐलान किया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के दस्तखत से जारी इस अहकाम में तमाम मुताल्लिक़ा अफ़राद से ख्वाहिश की गई है कि वो ज़रूरी इक़दाम करें। रुकन असम्बली चन्नानगुट्टा व कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने इनके हल्के इंतखाब चन्नानगुट्टे के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। अकबरुद्दीन अवैसी ने हल्के के कॉरपोरेटर्स के हमरा बल्दी, बरकी, आबरसानी महकमाजात से मंजूरा तरक्याती कामों के अलावा हल्के में ट्रैफिक के मसाइल, सरकारी स्कूल्स और दवाखानों में इंफ्रास्ट्रक्चर व अवामी सहूलतों की बेहतरी के सिलसिले में कॉरपोरेटर्स को ज़रूरी हिदायतें दी। बाज़ इलाकों में सरकारी स्कूल्स के अपग्रेडेशन के ज़िमन में वज़ीर तालीम से नुमाइंदगी करने का फैसला भी किया गया। चन्नानगुट्टे में सड़कों की तोसी के काम जारी हैं। हबीब नगर बरा रियासत नगर बाजार था बस स्टॉप सड़क की तोसी को मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह शोएब होटल था बालापुर सड़क की तोसी और नाले की तामीर का काम भी जारी है। नफीस गार्डन बंडलागुड़ा था एराकुंटा सड़क की तोसी के लिए मकानात के हुसूल और दूसरे मसाइल का इजलास में जायजा लिया गया। चन्नानगुट्टा हल्के में मजीद 2 नए फ्लाईओवर्स की तामीर के सिलसिले में अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से नुमाइंदगी की है। इन फ्लाईओवर्स की तामीर की इंतजामी मंजूरी भी हासिल कर ली गई है। तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट ओहदेदार तैयार कर रहे हैं। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 15 मार्च से 4 अप्रैल के दरमियान सुबह 9 ta 12 बजे दिन मुनक्किद होंगे। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in पर हॉल टिकट दस्तियाब रखे गए हैं। मुतालिका कॉलेज के प्रिंसिपल डाउनलोड करके तलबा में तकसीम कर सकते हैं। तलबा को मशवरा दिया गया है कि हॉल टिकट पर अपनी तस्वीर, नाम, दस्तखत, मज़ामीन वगैरह की अच्छी तरह जांच कर ले। अगर कोई गलती पाई जाती है तो फौरी इसकी इत्तला मुतालिका कॉलेज के प्रिंसिपल को दें और डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर के जरिए इस गलती की तस्दीक करवा लें। तेलंगाना पुलिस अवाम को हर मौसम में अपनी खिदमात फराहम करते हैं। पुलिस खिदमात से ही समाज में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहता है। पुलिस की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर बराए इमारत विश्वरा विमला प्रशांत रेड्डी ने निज़ामाबाद कमिश्नरेट के बालाकोंडा पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत का इफ्तिताह करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस की फ़र्ज शनासी और फ्रेंडली पुलिसिंग मुल्क भर में मशहूर है, क्योंकि क़याम तेलंगाना से तेलंगाना पुलिस ने अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात पैदा करते हुए इनके मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल की है। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हैदराबाद में शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार प्रभास की नई फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग कर रहे अदाकार अमिताभ बच्चन के शदीद जख्मी हो गए। अमिताभ बच्चन को गच्चीबौली के AIG अस्पताल रुजू किया गया, जहां मशवरे के बाद वो मुंबई वापस हो गए। मालूम हुआ है कि इस हादसे में अमिताभ बच्चन की फसलियों में चोटें आई हैं। अमिताभ ने प्रोजेक्ट के एक फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लिया था। डॉक्टर ने इन्हें 2 हफ्तों तक मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। मालूम हुआ है कि अमिताभ AIG में इलाज के बाद मुंबई रवाना हो गए हैं।